This Department, conference Dr. will Kaluke. now be recorded. Good morning. Myself, Dr. Ammadas Kaluke, lecturer in Panchakarma Department, Ashwin Rural Ayurveda College, Manchil. I am here to introduce today speaker Abhishek Bhattacharya ji. Dr. Abhishek Bhattacharya, presently working as lecturer in the Department of Panchakarma, College of Ayurveda, North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, Shillong, Meghalaya. He has completed his BMS from Government Ayurveda College, Guwahati, Assam, and post-graduation in MD Panchakarma from Sri Venkateswara Ayurveda College, Tirupati, Andhra Pradesh. He has gained knowledge of Ayurveda and Panchakarma from South India. He has presented many research papers in national and international Ayurveda conferences. Teaching experience of 7 years, his clinical as well as academic knowledge. His special interest area in Ayurveda is application of Panchakarma treatment in different musculoskeletal and neurological conditions. Now I request Honorable Speaker, please start the session. Thank you, Dr. Kaluke, sir. May I request Dr. Abhishek, sir, you can start your presentation. Thank you, sir. You can start now, sir. Okay. Okay. So first of all, I would like to thank the organizers and principals and everyone present over here. And so, good morning, everyone, respected faculty members and respected PG scholars and the students. So today I will deal with the topic joint disorders and their management by Ayurveda. तो मैं जो डील करने जा रहा हूँ उसमें मैं जितना हो सके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बोलने का कोशिश करूंगा। मेरा जितना मतलब छोटा सा एक्सपीरियंस है उससे मैं कैसे फील करता हूँ। Some maximum parts are from Samhita itself, and but some parts will be from my own experience, from my own thoughts. How do I feel? So, if anything at the last or in between any time, you please let me know anything, any ideas, you please share. So, it should be just like a discussion, and I'm going to start. So, all type of advices and all type of your rich experiences, please share with me so that I can learn more from you. Okay. So first, coming to Sanghi, what Ayurveda says that Vata or Kapha are the main doshas involved in normal structure and functioning of the joint. हम लोग जानते ही हैं कि कफ का हेलो कफ का एक स्थान जो बोला गया है उसको संधि में बोला गया है संधि इज मेन साइट ऑफ कफा स्पेशली प्रेशर कफा बट डायरेक्टली अगर वात का स्थान नहीं भी बोला गया है तो भी हम लोग समझ सकते हैं कि फंक्शनली संधि में जो है वात का प्रीडोमिनेंस हमेशा रहता है क्योंकि संधि का जो मेन एक्शन है एक्टिविटी है काम है वही है मूवमेंट करना and movement is one of the contribution of vata as vata is having shala guna so हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरली जॉइंट में जो है कफ का डोमिनेंट रहता है और फंक्शनली जो है वात का डोमिनेंट होता है और हमको गुणों से ये पता है कि वात और कफ आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट होता है इसलिए क्या होता है मैक्सिमम टाइम ताकि दो ऑपोजिट पावर आपस में एक जगह में काम करते हैं एक स्ट्रक्चरली एक फंक्शनली इसलिए एब्नॉर्मलिटी का चांसेस ज्यादा रहता है पैथोलॉजी उत्पन्न होने का चांसेस ज्यादा रहता है संधि को एक मर्म स्थान भी बोला गया है ताकि क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन और उसको मध्यम रोग मार्ग के अंडर में कंसीडर किया गया है तो ये एक नॉर्मल संधि है या नॉर्मल जॉइंट है अगर हम मॉडर्न एस्पेक्ट से देखें तो अभी अगर हमको एक जॉइंट को हेल्दी रखना है if we have to achieve healthy joint then what actually we have to do so we have to maintain हमको वात और कफ जो कि फंक्शनल एंटिटी और स्ट्रक्चरल एंटिटी है जॉइंट में उसको इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था में रखना पड़ेगा वात और कफ अगर साम्य अवस्था में ना रहे तो जॉइंट में डिजीजेस क्रिएट होते हैं और ताकि ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है इसलिए ये दोनों अगर एक साथ रहते हैं तो इनमें
मतलब विक्रिएशन होना या प्रॉब्लम होने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए हमको अगर जॉइंट्स को हेल्दी रखना है तो ये दोनों दोषों को आपस में साम्य बनाए रखना होगा। Sir, I request you to mute others because some noise is coming. Okay. So most of the joint diseases are due to Vata kapha vitiation. तो अभी हम देखेंगे कि जितने भी जॉइंट डिजीजेस हैं हम लोग अलग अलग से निदान नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग से निदान, बहुत टाइम हमको याद नहीं रहता है या हम लोग कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपने मतलब संहिता से अपने हिसाब से मैं कलेक्ट करने का कोशिश किया कि सिंपल सिंपल क्या क्या निदान हो सकता है विच आर मोर एसोसिएटेड विद कॉजिंग ऑफ जॉइंट डिजीजेस। तो जॉइंट डिजीज को कॉज करने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले ही हमको जो दिखाई देता है वो है विरुद्ध आहार। ओके, जो विरुद्ध आहार है, जितने भी टाइप का विरुद्ध आहार है वो सभी अगर हम रेगुलरली लेते रहे तो उससे क्या होता है, उसमें हम लोग का अग्नि का दृष्टि होता है और कालांतर में आम का प्रोडक्शन होता है और उससे अलग अलग तरह का जॉइंट डिजीज होने का चांस रहता है। फिर विदाही आहार। विदाही आहार मतलब जो आहार खाने के बाद हमको अंदर बर्निंग सेंसेशन फील होता है जो कि पित्त और रक्त को दूषित करता है। देन वातल आहार, जो भी आहार वात को इंक्रीज करता है, ऐसा जैसे कि स्पेशली जिसमें रुक्ष और शीता गुण का अधिक हो ऐसा आहार। देन आमा, किसी भी कारण से बॉडी में अगर आम का उत्पत्ति होता है तो वो जॉइंट डिजीज का कारण बन सकता है। उसके बाद मर्म अभिघात, दैट इज इंजुरी टू द वाइटल साइट। इधर एक्चुअली मर्म नॉर्मली वाइटल साइट्स है लेकिन इधर स्पेशली जॉइंट को ही मेंशन किया गया है। हम लोग पहले स्लाइड में ही देखे हैं कि जॉइंट को जो है, संधि को जो है एक मर्म के रूप में माना गया है। तो संधि में कोई भी तरह का अभिघात या इंजुरी जो है, ताकि वो एक्यूट इंजरी हो सकता है, कोई बड़ा ट्रॉमा हो सकता है और कभी कभी क्या होता है हमको छोटा छोटा इंजुरी होता रहता है जो हमको पता नहीं चलता है। दिस आर वेरी माइन्यूट रिपीटेटिव इंजुरी। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, जैसे फीमेल अगर हाई हील पहनते हैं तो क्या होता है उनको पता नहीं चलता है बट रिपीटेडली देयर विल बी सम इंजुरी ओवर द नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। सो वो भी एक तरह का मर्माभिघात होगा। या हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, जैसे जो लोग बहुत टाइम से खड़े रहते हैं, जिनका खड़े रहने का जॉब होता है, उनका नीज में कंटिन्यू प्रेशर गिर के इंजुरी होता है। या हम कभी भी अबनॉर्मल पोस्चर में बैठते हैं तो हमारे स्पाइन में जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स है उनमें दबाव देता है। तो वो उन सबको भी हम एकदम से माइन्यूट इंजुरीज मान सकते हैं। और कंटिन्यूअसली अगर ऐसा इंजुरीज होता रहेगा that will certainly cause some joint diseases in the long run. Then excessive exposure to शीतगुण। excessive exposure to शीतगुण, आप देखेंगे जो सब जगह में ज्यादा ठंडा है उनमें जॉइंट का डिजीजेस ज्यादा होता है। एक्चुअली मैं शिलोंग से हूँ जहाँ की बहुत ज्यादा ठंडा है, तो हमारे इधर जॉइंट का डिजीजेस बहुत ज्यादा मिला जाता है। उसका एक कारण ऐसा हो सकता है कि जैसे हम लोग देखे कि संधि में जो है वात और कफ रहता है, एक फंक्शनल एक स्ट्रक्चर है। तो दोनों में ही जो है शीत गुण प्रधान है। वात को शीत गुण विषेक करता है, कफ को भी शीत गुण दूषित करता है। तो जब हमको ज्यादा कोल्ड एक्सपोजर हो रहा है तो वात और कफ दोनों ही दोषों का बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए एक्सेसिव एक्सपोजर टू कोल्ड जॉइंट डिजीजेस कर सकते हैं। अभी हम आते हैं एक मतलब सिंपल सा मैंने दिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स हो या हमको भी कभी कभी पता नहीं चल पाता है, एक पेशेंट जब जॉइंट लेके आता है तो किस तरह का जॉइंट डिजीज है, क्योंकि आयुर्वेद में कुछ स्पेसिफिक तरह का ही जॉइंट डिजीज बोला गया है और मॉडर्न में मतलब बहुत तरह का जॉइंट डिजीज बोला गया है। कभी कभी हम इवन उसका निदान को कर नहीं सकते हैं, जो पॉजिटिव फैक्टर है या फीचर्स देखते हैं
देख के भी डायग्नोसिस करना, जो क्लिनिकल क्राइटेरिया दिए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन किए गए हैं, उसके आधार पर हम बहुत क्लियरली उसको मतलब पहचान नहीं पाते हैं, डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। तो उस मतलब कंडीशन में हम अगर सिर्फ दोषों का लक्षण देखें और दोषों के हिसाब से ट्रीटमेंट करें तो बहुत सरल हो जाता है सब कुछ। तो हम मतलब सब कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं जैसा मैं दिया हूँ कि जॉइंट में अगर बात पित्त रक्त कफ या आम का दूषण होगा तो किस तरह का कंडीशन या किस तरह के लक्षण हमको दिखाई दे सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि अगर बात तुष्टि हो जाता है तो उधर हमको स्पेशली शूल मिलेगा, अलग अलग तरह का पेन मिलेगा, संधि स्फुरण मिलेगा, क्रेपिटस, जो हमको क्रेपिटस साउंड मिलता है वैसा मिलेगा, एब्नॉर्मल साउंड प्रोडक्शन होगा, अनस्टेबल शो दैट इज स्वेलिंग होगा, लेकिन स्वेलिंग जो है लॉन्ग स्टैंडिंग टाइप ऑफ स्वेलिंग नहीं होगा, वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, उस तरह का स्वेलिंग होगा। फिर संधि रुक्षता होगा। संधि रुक्षता मतलब एक्चुअली संधि के बाहर का जो स्किन है उसका रुक्षता भी हो सकता है, या अंदर संधि के अंदर जो कफ होता है या जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसका भी ड्राइनेस हो सकता है। तो उसका हमको अनुमान से ही प्रमाण करना पड़ेगा। अनुमान से हम कैसे प्रमाण करेंगे, ताकि अगर जॉइंट में हमको क्रेपिटस मिलता है या एब्नॉर्मल साउंड मिलता है, जो कि जनरली जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड की कमी से दो बोन्स के आपस में जब फ्रिक्शन होता है उससे ही प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम क्रेपिटस हमको मिलेगा उससे ही हम संधि रुक्षता का अनुमान कर सकते हैं। फिर संधि संकोच, संधि संकोच में अलग अलग तरह का डिफॉर्मिटी होना, जॉइंट में अलग अलग तरह का डिफॉर्मिटी होना। हम देखेंगे कि मैक्सिमम जो जॉइंट डिफॉर्मिटी होता है उसमें जो इंटर आर्टिकुलर स्पेस है वो कम जाता है, मतलब उसमें संकोच हो जाता है। तो कोई भी तरह का मतलब जॉइंट का जो डिफॉर्मिटी है तो वो बात का ही एट्रीब्यूट है। अब अगर देखेंगे आम बात में जो जॉइंट डिफॉर्मिटी होता है वो एक्यूट कंडीशन में नहीं होंगे, वो क्रॉनिक कंडीशन में जो जब बात का अधिकता होगा तो ही जॉइंट में डिफॉर्मिटीज आएगा। तो डिफॉर्मिटीज अगर जॉइंट में मिलते हैं तो जनरली हम उसको बात का अधिकतम मान सकते हैं। कभी कभी उसका ऑपोजिट भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है, ये जनरल कंसिडरेशन। तो पित्त और रक्त का अगर अधिकता होगा तो स्पर्श असहत्व होगा, मतलब पेन इन टच, पेशेंट टच को सह नहीं सकता है, ऐसा टाइप का पेन होगा। दाहा और शूला, बर्निंग टाइप का पेन होगा। फिर रागा एसोसिएटेड विद शोफा, मतलब बहुत ज्यादा रेडनेस होगा उसमें, और स्पेशली एक कलर होगा जो कि ताम्र वर्ण बोला गया है, मतलब तांबे का जो कलर होता है थोड़ा ब्राउनिश टाइप का रेड कलर का होगा। फिर पाका मतलब एंड उष्मा, मतलब अलग अलग तरह का इंफ्लेमेटरी साइंस आएगा, और लोकल टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये फीचर्स हमको पित्त और रक्त से मिलते हैं। अभी हम आएंगे कफ से। कफ अगर ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, संधि में स्थायित्व होगा। स्थायित्व मतलब संधि का मूवमेंट में दिक्कत होगा, स्टिफनेस ज्यादा आएगा। गौरव हैप्पीनेस का फीलिंग होगा जॉइंट में। सुक्ति थोड़ा नमनेस का फीलिंग होगा। अल्परू पेन होगा, लेकिन इसमें हैवीनेस का फीलिंग और अलग तरह का मतलब कुछ सेंसेशन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा। तो कफों में ये होगा। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आम का। तो आम अगर देखेंगे तो आम में भी आम और कफ के बहुत ज्यादा गुण का सादृश्य होता है। तो आम में भी हमको स्टिफनेस मिलेगा, आम में भी हमको शोक मिलेगा, स्वेलिंग, और वो शोक बात की तरह आता जाता हुआ इतना फ्रीक्वेंटली मूवमेंट नहीं करेगा प्योर आम से हो। और गौरवा हैवीनेस भी मिलेगा। और लेकिन कफ में हमको अल्प रूप मिला था, इधर जो है आम से अगर संधि का मतलब प्रॉब्लम होगा तो उसमें तीव्र शूल मिलेगा, मतलब सीवियर पेन मिलेगा। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आम का एसोसिएट होने से symptoms will aggravate with rain, cloud and cold weather. This is very common. कभी भी संधि में अगर आम का विशेषण हो
तो जो दर्द या जो भी हो, वो मतलब अगर रेनिंग हो, बारिश हो, या आसमान में बादल हो, या कोल्ड वेदर हो, ठंडा मौसम हो, उससे पेन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो आम का ये स्पेसिफिक फीचर है। तो आम जो है, हमेशा तो हम ऐसा नहीं देख सकते कि आम अकेला रहेगा। जनरली साम दोष की कंडीशन में रहते हैं। तो आम जो है वात के साथ रहेगा, पित्त के साथ, कफ के साथ, या रक्त के साथ रह सकता है। तो किसी भी दोष के साथ जब आम रहेगा, तो आम और उस दोष का मिक्स फीचर हो सकता है। लेकिन ये आम का जो स्पेसिफिक फीचर है कि जब बारिश होना, जब क्लाउड होना, जब बादल होना, या ठंडा मौसम होना, सब सिम्टम्स का बढ़ना ये कंटिन्यू रहेगा। ये इम्पोर्टेंट फीचर है आम के लिए। तो अभी हम थोड़ा सा मॉडर्न टाइम्स के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो अगर हम, क्योंकि हमेशा हमको एक्चुअली आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोज कर पाना कठिन हो जाता है। मॉडर्न साइंस को हम जब जानेंगे, तो हमको आयुर्वेद और ज्यादा सही लगने लगे। एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स को कभी कभी हम आयुर्वेद में ऐसा कुछ चीज मिलता है, तो हम विश्वास करते हैं कभी कभी, लेकिन हमको थोड़ा डाउट होने लगता है कि नहीं ऐसा होता है। लेकिन अगर हम मॉडर्न साइंस को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, तो हमको वो डाउट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो अगर हम आएंगे मॉडर्न साइंस के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, मॉडर्न साइंस में जॉइंट डिवीजन को मेनली मेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो ये मैकेनिकल और डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, मैकेनिकल और डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। एक मैकेनिकल से है जो डीजेनरेशन से होता है। तो आयुर्वेद में क्या है, उसको धातु क्षय से होने वाला हम मान सकते हैं। जो धातु है उसके क्षय से जो टाइप का डिजीजेस है, उसके जो वात से होते हैं, वात जल में जो होते हैं, जॉइंट डिजीज जैसे संधि का प्रभाव, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डीजेनरेटिव, धातु क्षय, तो जो डिजीजेस है ये एक कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज, दैट इज प्री सिस्टम। इन्फ्लेमेशन ही पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। तो इसको आयुर्वेद में हम आमजन्य या पांचजन्य जॉइंट डिजीज के हिसाब से बोल सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ। हेलो। हाँ हेलो सर, सर, सुनाई दे रहा आवाज। है हमको? हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है, अभी सुनाई दे रहा है आपका आवाज। सर आप। एक्चुअली हमारा लैपटॉप में जो नेट कनेक्शन था उसमें कुछ अच्छा। प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो ठीक है सर, नो इशू। आप काइंडली काइंडली हमारा मोबाइल का जो जॉइंट है उसको प्रेजेंटर कर दीजिए, तो हम मतलब उसमें। ओके, उसका उसका नाम क्या है आपका मोबाइल का? मैं आपको प्रेजेंटर कर देता हूँ। सर मोबाइल पे डॉक्टर नाम क्या है? अभिषेक भट्टाचार्य बोल के ही है। ओके सर, मैं देख के आपको करता हूँ सर, प्रेजेंटर करता हूँ। ओके ओके सर। अभिषेक सर, मुझे एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि लैपटॉप दिखाई दे रहा है। सर और एक है मोबाइल में है। तो कुछ मोबाइल एक्चुअली का कुछ
मोबाइल का शो नहीं हो इसका रहा है सर नेट मेरे का पास। कुछ प्रॉब्लम हो गया सर, नेटवर्क दिखाई दे रहा है क्या? हाँ अभिषेक कर रहे हैं, राइट राइट दिखाई दे रहा है सर। एक मिनट मैं उसको ये एडमिन करता हूँ, एक सेकंड। मेक प्रेजेंटर हो गया सर। सर नहीं हो गया, अभी मैंने हो कर गया। दिया सर। हो गया हो गया। ओके सर, वो वाला भी आ गया, वो वाला आ गया ना सर? लैपटॉप वाला भी आ गया। एक्चुअली सर कुछ इधर लिखा है तो क्या प्रॉब्लम है? तो मैं मोबाइल से करूँ या लैपटॉप से करूँ? आपको जो ठीक लग रहा है वो करिए सर। आपका जो अब नेट चाह रहा है ना, आप सर दोनों में से लैपटॉप वाला कर दीजिए सर, लैपटॉप वाला कर दीजिए सर, उसमें अगर आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन। एक सेकंड। अभिषेक सर, आप लैपटॉप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और मोबाइल से बात भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ओके सर, लैपटॉप से ही करता हूँ सर। सर अभी मोबाइल को आपके कनेक्ट हो गया है, लैपटॉप का कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। हेलो अभिषेक सर, अभिषेक सर लैपटॉप अभी लैपटॉप को मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है सर लैपटॉप पर। ओके ओके सर, आपको दिखाई दे रहा है। ओके। Now we can show your screen sir. यस यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके okay ओके, so सो we were enjoy mechanical mechanical joint diseases that in modern science, if we see the joint diseases are classified into two categories. सर आपको रेजोनेंस हो रहा है क्या? सर आपने Yes, sir, आप it's दोनों में से visible. एक माइक बंद कीजिए, मोबाइल का माइक बंद कर दीजिए, लैपटॉप का माइक ऑन रखिए। ओके ओके सर, ठीक। okay now fine sir. Okay, so joint diseases broadly has been classified in modern medical science into two categories, that is mechanical और degenerative joint disease और धातु क्षय जन्य हम इसको बोलेंगे। दूसरा ग्रुप है inflammatory joint disease और आमजन्य, उसको हम आयुर्वेद में धातुपात जन्य बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हेलो हेलो आवाज आ रही है आपकी? ओके तो आवाज आ रही है मैकेनिकल और ओके ओके मैकेनिकल और डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज जो है उसके हम हाउ कैसे पता चलेगा कि ये मैकेनिकल या डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है? अगर
हेलो हेलो। हाँ सर अभी बोलिए, आ रही है सर आवाज। सर आवाज आ रही है। बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है लैपटॉप में। एक्चुअली मेरा ब्रॉडबैंड का शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर आप इसमें। कोई भी एक डिवाइस शुरू रखिए तो आपका नेट प्रॉपरली मिल जाएगा। कोई भी एक मोबाइल या लैपटॉप, कोई भी एक डिवाइस शुरू रखिए। मोबाइल ही करिए फिर, क्योंकि लैपटॉप में नहीं हो पा रहा है। हमारा ब्रॉडबैंड जो है वो शायद किसी कारण से प्रॉब्लम कर रहा है। मोबाइल ही ठीक है, कर देते। तो मोबाइल को मैं प्रेजेंटर करूं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल को कर। ओके। खावाची थी तो चुप. काय नाही घातलं रे. हेलो काय अभिषेक नाही सर, घातलं. मैंने मोबाइल को प्रेजेंटर कर दिया है सर। हेलो हेलो। यस सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपका। ओके ओके सर, ओके। सो आफ्टर मैकेनिकल हम आएंगे इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज में। सो इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज में हमको क्या होगा? एक्टिविटी विल रिलीव द पेन। मतलब कोई भी हम एक्टिविटी करेंगे तो उससे पेन का रिलीव होगा, और रेस्ट या इनएक्टिविटी से पेन जो है वो बढ़ेगा, और अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगा। मॉर्निंग को सो के उठने के बाद हमको मोर देन 30 मिनट्स का स्टिफनेस रहेगा। अभी हम आते हैं जो डिजीज पे, वो है संधिगत वात। अगर हम आयुर्वेद में देखेंगे तो संधिगत वात जो है, मॉडर्न के जितने भी डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है उसको आयुर्वेद में जो संधिगत वात का डिस्क्रिप्शन है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो संधिगत वात में क्या होता है? पहला चीज होता है अस्थि धातु का क्षय होता है, या सिर्फ अस्थि धातु क्यों, हम कुछ कुछ अस्थि धातु या बाकी उपधातुओं का भी, बाकी कुछ कुछ धातुओं का भी कभी क्षय हो सकता है। तो मेन पैथोलॉजी जो है वो हमेशा क्षय रहेगा, और उसके बाद उससे क्या होगा? वात प्रकोप होगा। क्योंकि हमको पता है धातु क्षय से वात का प्रकोप होता है, और फिर वात प्रकोप से भी धातु क्षय होता है। इसलिए संधिगत वात का जो कंडीशन है, ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक बार धातु क्षय होने से वात प्रकोप हो जाता है, और फिर वात का प्रकोप होने से फिर धातु क्षय, मतलब दोनों आपस में वाइस वर्सा है, एक होने से दूसरा हो जाता है। तो उसमें दोष दुष्य जो है, ये हम सबको पता है, दोष वात है, दुष्य जनरली अस्थि संधि है, श्रोत रस अस्थिवात स्रोत और रसवात स्रोत इन्वॉल्व होते हैं, रोग मार्ग मध्यम है, और रोग स्वभाव चीरकारी है, कृच्छ साध्य है। तो उसका मेन फीचर्स क्या मिलेगा? मेन फीचर्स हमको मिलेगा कि उसमें जो है, उसमें वातपूर्ण धृति स्पर्श शोथ मिलेगा। मतलब जिसमें ऐसा टाइप का हमको जब हम टच करेंगे उसको जॉइंट को, तो उसमें हमको वातपूर्ण धृति मतलब क्रेपिटस मिलेगा। फिर आकुंचन प्रसारणी आसक्ति मिलेगा। पेशेंट विल बी अनेबल टू मूव हिज जॉइंट्स, मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में पेशेंट को दिक्कत होने लगेगा। आकुंचन प्रसारणी अशक्ति, प्रवृत्तिश्च संवेदना। प्रवृत्तिश्च संवेदना मतलब जब पेशेंट कोई भी जॉइंट मूवमेंट करने जाएगा
तो उसमें पेशेंट को क्या होगा, तब पेशेंट को उसमें दर्द का महसूस होगा। ओके, तो इसमें सर कुछ स्लाइड्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ऐसे ही मुंह से बोलता हूँ। तो संधिगतवात में अगर हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इन मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोला गया है कि व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि जॉइंट का जो डीजेनरेशन है, डीजेनरेशन होने के वजह से उसको साइमल्टेनियसली क्या होता है, जॉइंट में रीमॉडलिंग होता है। मतलब जो बोनी स्ट्रक्चर है उसका मॉडलिंग थोड़ा चेंज हो सकता है। मॉडलिंग चेंज हो सकता है मतलब उसमें छोटा छोटा नया बोन का ग्रोथ होता है, और वो बोन का ग्रोथ होने से ही उसमें फिर जॉइंट के अंदर रिपीटेड इंजुरीज होते हैं। वो बोनी ग्रोथ को हम ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। अगर हम आयुर्वेद के दृष्टि से देखें तो उसको हम अध्यस्ति बोल सकते हैं। अध्यस्ति जो कि अस्थिवाह श्रोतदुष्टि का मेन लक्षण बताया गया है। तो अभी अगर हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस मिले, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमको अलग अलग जगह में हो सकता है। सो क्या क्या टाइप का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है? सबसे कॉमनेस्ट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हमको मिलता है वो है आइसोलेटेड नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब नी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस होना। उसमें क्या होता है, जनरली एल्डरली पीपल में जो कि ओबेज हो, उनका वेट बियरिंग जॉइंट, मोस्ट कॉमनली नी जॉइंट्स में जो जॉइंट स्पेस होता है उसका रिडक्शन होता है, और जॉइंट स्पेस का रिडक्शन होने के कारण और उसमें रीमॉडलिंग होके ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होने के जॉइंट में पेन का होता है। तो उस तरह का कंडीशन को आइसोलेटेड नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला गया है। और उसके अलावा हमको हिप जॉइंट या एंकल जॉइंट में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। वेरी कॉमनली हम जो एक कंडीशन को बहुत मिस इंटरप्रिट करते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे ओपीडीज में जब पेशेंट आते हैं जॉइंट का मतलब हैंड्स के स्मॉल जॉइंट का स्वेलिंग लेके, तो हम उसको जनरली कॉमनली आम बात बोल के ही हर टाइम हम डायग्नोस कर देते हैं। लेकिन देयर इज वन टाइप ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक्चुअली आई एम कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आई एम मिसिंग माय सम स्लाइड्स, इट वाज इन लैपटॉप। सो देयर इज अ कंडीशन नोन एज नोड्यूलर ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें हमारा जो हैंड का डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स है उसमें कुछ बोनी नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, और बोनी नोड्यूल फॉर्मेशन होने के साथ उधर जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब डिस्टल इंटरफेरेंजियल जो जॉइंट्स होते हैं उसका डीजेनरेशन होता है, उधर का स्पेस कम हो जाता है, और उसको नोड्यूलर ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला गया है। और वो नोड्यूलर ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में मिलता है, मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में मिलता है। अभी हम अगर इस कंडीशन को आम बात के साथ मतलब गलती कर देंगे तो टोटली जो हमारा ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आम बात का ऑपोजिट ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है, संधिवात का ऑपोजिट ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है। संधिवात में हमको ब्रिंहन करना है, स्नेहन करना है, उधर ही आम बात में हमको रुक्ष चिकित्सा करना है, लंघन करना है। तो ये ऑपोजिट हो जाने के कारण वी कैन नॉट गेट सक्सेस इन ट्रीटमेंट। सो उसके बाद हम आते हैं चिकित्सा पे कि संधिगतवात में हमको क्या चिकित्सा करना पड़ेगा। संधिगतवात का चिकित्सा जो है पहले ही, क्योंकि संधिगतवात अगर हम देखेंगे वो एक प्योरली वातिक कंडीशन है जो कि धातु क्षय से उत्पन्न होता है, इसलिए हमको उस कंडीशन में ब्रिंहन और धातु पोषण करना है, ब्रिंहन और धातु पोषण करना है। और हमको स्पेशली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि वाद व्याधि का चिकित्सा कैसे बोलते हैं, तो बोले हैं कि केवल ही निरुपस्तंभ आदौ स्नेहैर उपाचरित। अगर निरुपस्तंभित बात है मीन्स अगर प्योर वातिक कंडीशन है उस टाइम हम पहले स्नेहन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्नेह ही है जो वात को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से शमन कर सकता है। इसलिए हम स्नेहन से स्टार्ट करेंगे, अलग जैसा हमको अवेलेबल हो उस स्नेहन का प्रयोग कर सकते हैं। हम एक्सटर्नली स्नेहन दे सकते हैं, इंटरनली स्नेहन यूज कर सकते हैं संधिगत वात। स्पेशली जो बोला गया है कि
शतपाक या सहस्त्रपाक तैल होता है, क्योंकि तैल वात मेडिसिन माना गया है। तो जो शतपाक या सहस्त्रपाक तेल होता है, जैसे कि वाला तेल या धनवंतरम तेल शतपाक सहस्त्रपाक है, तो वो प्रयोग करने से, क्योंकि उसमें सूक्ष्म गुण ज्यादा होता है, वो डीपर स्ट्रक्चर में जाके ज्यादा अच्छी तरह से नरिशमेंट कर सकता है अगर हम इंटरनली देने का सोचें। उसके अलावा भी हम, क्योंकि ये अस्थि धातु अस्थि धातु में वात का प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, तिक्त घृत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गुगुल तिक्त घृत हुआ, दैट इज पंचतिक्त गुगुल घृत जो हुआ, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या कोई भी तिक्त घृत का अश्वगंधा घृत हुआ, उसका प्रयोग कर सकते हैं इंटरनली। और एक्सटर्नली हम क्या कर सकते हैं, एंड एक्सटर्नली नॉर्मली हम जो स्नेहन या स्वेदन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, स्पेशली इन केस ऑफ जानु संधिगत वात, हम उपनाह इज ए वेरी इफेक्टिव मेजर। उपनाह इज अ वेरी इफेक्टिव मेजर। उपनाह का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। हम नॉर्मली जानुवस्ती का प्रयोग करते हैं, जो कि स्नेहन और स्वेदन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। जानुवस्ती में हमको स्नेहन और स्वेदन जो है वो साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए ऐसे डिजेनरेटिव कंडीशन जो वात के लिए है, उसमें हमको जानुवस्ती बहुत ही अफेक्टेड होता है। अभी कौन सा तेल से करेंगे, दैट वी हैव टू सिलेक्ट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो आफ्टर जानुवस्ती जब हम देते हैं, तो आफ्टर जानुवस्ती अगर हम जगह को टच करेंगे, तब देखेंगे जगह बहुत देर तक उसमें गर्म रह जाता है, दैट इज हीट इज रिटेन्ड इनसाइड द जॉइंट फॉर लॉन्ग टाइम, और वही हमको करना है। शीत गुण को जितना है हमको कम करना है उष्ण गुण से। तो जानुवस्ती देने के तुरंत बाद हम क्या कर सकते हैं, उपनाह का प्रयोग कर सकते हैं। तो उपनाह कैसे करेंगे, सिंपल फॉर संधिगत वात I am telling upanaha, we can take shunthi churna, plain shunthi churna, and we can mix milk with it and we can cook it for little bit of time. और जब वो पेस्ट जैसा बन जाएगा, then we can apply it over the knee and we can apply एरंड तैला और एरंड पत्रा और अर्क पत्रा, एंड उसके बाद हम उसमें उपनाह बांध सकते हैं। और अभी एक्सटर्नल थेरेपी में ही है हम लोग, तो अग्निकर्मा कैन बी वेरी गुड प्रैक्टिस। अग्निकर्मा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है पेन को कम करने के लिए। जो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन है, उसमें पेन को कम करने के लिए अग्निकर्मा बहुत ही यूजफुल तरीका है। लेकिन अग्निकर्मा का एक ड्रॉबैक क्या है कि एक बार अगर हम अग्निकर्मा कर लेंगे, तो उस जगह में हम फिर जानुवस्ती या स्वेदन कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक 7-8 दिन तक। मतलब जब तक उधर का लोकल स्कार हिल ना हो जाए, तब तक हम उसमें मतलब दूसरा कुछ थेरेपी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ एक संधिवात का सीवियर कंडीशन में है और हम सिर्फ अग्निकर्मा करके उसको ठीक करना दिक्कत होता है। तो actually I have learned a very simple procedure of Agnikarma in JS Ayurveda College Nadiad। जो नडियाड का उसमें एक CME हुआ था, JS आयुर्वेदा कॉलेज नडियाड में, तो उधर वो लोग एक बहुत ही सिंपल तरह का अग्निकर्मा सिखाया था, जिसमें स्कार वगैरह कुछ नहीं पड़ता है। हमको पता नहीं है कि हम डायरेक्ट उसको अग्निकर्मा नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्लिनिकली दैट इज वेरी 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 इफेक्टिव। एक्चुअली मेरे जो स्लाइड था, ओरिजिनल स्लाइड, ये मैं दूसरा स्लाइड दिखा, मतलब ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि वो मेरा लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम हो गया नेटवर्क का, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ था। तो आई विल शेयर दोस फोटोज कि वो अग्निकर्मा कैसे करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आप लोग सभी बहुत इजीली कर सकते हैं, जरूर ट्राई करिए। मैं बोलूंगा कैसा करते हैं। हमको जो चाहिए वो है स्पिरिट स्वैप। हमको स्पिरिट स्वैप चाहिए, एक कुछ 8-10 स्पिरिट स्वैप चाहिए। जैसे हम इंजेक्शन वगैरह देने से गोल कर लेते हैं, वैसे हम गोल कर लेंगे स्वैप को स्पिरिट के साथ और उसको रख देंगे। उसके बाद हमको एक फॉर्सेप चाहिए, एक फॉर्सेप चाहिए, कोई भी तरह का फॉर्सेप चलेगा। और हमको अर्क पत्र चाहिए कुछ,
तो हम क्या करते हैं, वो स्पिरिट स्वैप को फोर्सेप्स से पकड़कर फिर जो जिस जॉइंट के ऊपर हमको देना है उस जॉइंट के हम देख लेंगे जॉइंट के किस किस जगह में ज्यादा टेंडर पॉइंट्स है। टेंडर अगर हमको नी जॉइंट में करना है, क्योंकि अभी हम नी जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो नी जॉइंट में करना है तो नी जॉइंट में कौन सा पॉइंट बहुत ज्यादा टेंडर है वो हम देख लेंगे। देख के उसके ऊपर अर्कपत्र रख के वो जो स्पिरिट स्वैप है उसको उसमें आग जला के हम अर्कपत्र को नी या किसी भी जगह जहां हम कर रहे हैं उस जगह पे रख के वो जो टेंडर पॉइंट है उसमें फोर्सेप से जो आग पकड़ा हुआ है वो वाला आग उस जगह में लगाएंगे जितना देर तक पेशेंट बियर कर सकता हो। तो जहां जहां भी टेंडर पॉइंट्स हैं उस जगहों में हम ऐसे अग्निकर्म करेंगे। और ये अग्निकर्म हम रेगुलर भी कर सकते हैं, बट अग्निकर्म करने के बाद उसमें कोई भी स्कार नहीं होगा। ये जो प्रोसीजर है उसमें कोई भी स्कार नहीं होगा। तो ये करने के तुरंत बाद हमको कुछ स्नेह अप्लाई करना है, क्योंकि नॉर्मली अग्नि रुक्ष होता है, उष्ण रुक्ष होता है, तो हमको रुक्ष नहीं करना है क्योंकि वात का फिर से बढ़ सकता है। तो हम उसके बाद तुरंत कुछ स्नेह का एप्लीकेशन कर देंगे। है अग्निकर्म का वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं 7 डेज, 14 डेज और 21 डेज, जितना देर तक हमको रिजल्ट ना मिले उतना देर तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये सिर्फ नी जॉइंट में ही नहीं, देयर इज अ वेरी 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 गुड ट्रीटमेंट फॉर द केस ऑफ फ्रोजन शोल्डर, जो आयुर्वेद में अबबाहुक का कंडीशन बोला गया है, उसमें ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। फ्रोजन शोल्डर में हम लोग जनरली देखते हैं स्नेहन कराते हैं, लेकिन उसके बाद पेशेंट का जो है स्टिफनेस कम नहीं होता है, तो उस चीज में ये अग्निकर्म बहुत ही लाभकारी है। नेक्स्ट अभी उसके बाद हम आएंगे डीजेनरेट इनका जॉइंट डिजीजेस है वो सब संधिगतवात में ही बोला गया है। सॉरी, संधिगतवात में मैं एक चीज मिस कर गया, दैट इज वस्ती एप्लीकेशन। सो वस्ती इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इन संधिगतवात। सो हम उसमें स्पेशली किस तरह का वस्ती देंगे, मोस्ट इफेक्टिव इज द तिक्तक क्षीरा वस्ती, क्योंकि बोला गया है कि कोई भी अस्थि धातु स्रोत का जो दुष्टि है या अस्थि धातु का जो दुष्टि है उसमें तिक्तक क्षीरावस्थी या तिक्तक घृतावस्थी जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। सो हम तिक्तक क्षीरावस्थी दे सकते हैं, या तिक्त अगर हमको मात्रावस्थी देना है तो हम अगर यापन वस्ती देने का हमारे पास फैसिलिटी नहीं है देन वी कैन गिव वस्ती सिंपली विद द हेल्प ऑफ तिक्त घृतम। कोई भी तिक्त टाइप का घृत ले सकते हैं, पंचतिक्त घृत ले सकते हैं, गुगुल तिक्त घृत ले सकते हैं, अश्वगंधा घृत ले सकते हैं, कोई भी तिक्त घृत से हम वस्ती दे सकते हैं। मात्रा वस्ती कैन बी कंटिन्यूड 14 days or even 21 days also to get a good relief। और अगर हमारे पास साधन है तो हम लोग जरूर तिक्त क्षीर यापन वस्ती को देंगे। तो मैं जो करता हूँ तिक्त क्षीर यापन वस्ती में, उसमें मैं मधु लेता हूँ 50 ग्राम्स, देन लवण लेता हूँ 2 to 5 ग्राम। जनरली जो पेशेंट का कम रिटेंशन होता है उनमें हम लवण का मात्रा कम देंगे, क्योंकि यापन वस्ती है तो थोड़ा ज्यादा टाइम में अगर रहता है तो अच्छा है। और कलका की जगह में मैं जनरली गिलाई चूर्णा लेता हूँ या पंचतिक्त का कलका अगर हमको मिले बहुत अच्छा है। और उसके बाद स्नेह की जगह में मैं पंचतिक्त घृत लेता हूँ या पंचतिक्त गुगुल घृत लेता हूँ। और क्वाथ की जगह में जो है वो पंचतिक्त क्षीरपाक हमको लेना है लगभग 150 ml। तो ये सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला के हमको यापन वस्ती देना है। जनरली वी गिव द यापन वस्ती फॉर 14 days। तो अभी हम आते हैं इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज। सो इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज को हम कैसे पहचानेंगे? कोई भी जॉइंट डिजीज, कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम अगर पेशेंट बोलता है कि हम अगर काम नहीं करते हैं तो पेन और स्टिफनेस बढ़ जाता है, और काम करने से धीरे धीरे पेन और स्टिफनेस कम हो जाता है, सो दैट इज इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज। और मॉर्निंग स्टिफनेस का होना, मॉर्निंग के टाइम में स्टिफनेस होना। अभी हम आते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो हम
कॉमनली करते हैं इन केस ऑफ जॉइंट डिजीजेस में, कुछ इन्वेस्टिगेशंस। लेकिन हम देखेंगे कि जॉइंट डिजीजेस में नन ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस आर कंक्लूसिव, मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन हमको कंक्लूजन नहीं देता है कि ये इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव है तो ये डिजीज है, बहुत ही कम, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव केसेस वगैरह बहुत ज्यादा होता है। आरए फैक्टर पॉजिटिव है तो आरए ही है, या आरए फैक्टर नेगेटिव है तो आरए नहीं है, ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन तो हमको डायग्नोसिस में हेल्प करता ही है। तो रूटीन एग्जामिनेशन, टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, ये तो है ही। उसके बाद सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी जिसको बोलते हैं, वो स्पेसिफिक एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, वो बहुत जरूरी है हमारे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद रूमेटॉइड फैक्टर, देन एएसओ टाइटर, डिफरेंशिएट करने में दैट रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या रूमेटिक फीवर है, हम एएसओ टाइटर कराते हैं। फिर एनटीसीसीपी, दैट इज वेरी स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ आरए, आरए फैक्टर से भी ज्यादा स्पेसिफिक टेस्ट जनरली एनटीसीसीपी होता है। फिर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एंड एंटी डीएसडीएनए, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और एंटी डीएसडीएनए जो है वो बहुत स्पेसिफिक है एसएलई के लिए, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस और एनी अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। अभी हम अगर हम बायोकेमिकल टेस्ट में आए, सीरम यूरिक एसिड या ब्लड शुगर वगैरह हम कराते हैं। यूरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन प्लेन रेडियोग्राफ, एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटी स्कैन एंड एमआरआई कराएंगे। फिर साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, अलग तरह का एनालिसिस करेंगे हम साइनोवियल फ्लूइड में। सो अभी हम आएंगे आमवात में। सो आमवात में अगर हम देखेंगे कि आम दो प्रोसीजर होता है, दो मतलब पैथोलॉजी साइमल्टेनियसली होता है, वन इज आमा फॉर्मेशन, वन इज वात प्रकोप। और आमा फॉर्मेशन और वात प्रकोप साइमल्टेनियसली होने से ही ये कंडीशन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे आम में कफ का फीचर्स रहता है और वात उसका ऑपोजिट फीचर्स होता है, और जॉइंट्स में जो है कफा ऑलरेडी प्रीडोमिनेंट रहता है और वाता भी रहता है। सो बॉडी में अगर आम और वात दोनों साइमल्टेनियसली ज्यादा विशेटेड हो जाएंगे और जाके जॉइंट में आश्रय ले लेंगे तो वो कंडीशन काफी प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो आम अगर देखेंगे, अगर हम आम के फीचर्स में आए कि आम एक्चुअली क्या चीज है, तो आम के कुछ अलग अलग हम सोच सकते हैं क्या क्या है। तो पहले चीज जो है उसको अपचित अन्न रस बोला गया है, जो मतलब फूड पार्टिकल्स अच्छी तरह से डाइजेस्टिव ना हो। देन अपरिपक्व रस धातु, मतलब जो रस धातु है, पहला धातु है, वो अगर अच्छी तरह से उसका फॉर्मेशन ना हुआ हो। फिर कभी बोला गया है कि वो मल संचय है, कुछ मल जो बॉडी में है जो हमारे लिए अननेसेसरी है, वो अगर उसका संचय हो जाता है बॉडी में तो वो भी आम की तरह काम कर सकता है। और प्रथमा दोषा दुष्टि, मतलब दोष और दुष्य का जो प्रथम मिलन होता है, दोष दुष्य समूर्छना